who has positive thoughts on their mind. They always radiate human being to human being, mind to mind, village to village, place to place, country to country. Good things. Lord Buddha preached to us good things 2600 years ago under the Bodhi tree. After got the enlightenment, he preached to Dhamma with good thought for society. Why did he preach to Dhamma? You want to be a good person. If you're interested into practice loving kindness meditation by yourself, please find, first you have to find peaceful place. It doesn't matter Buddhist temple or Buddhist place or non-Buddhist place. What are the place peaceful for your mind? Find that place and sit comfortably. Relax your body and relax your mind. And breathing in and out with positive thoughts, good thoughts. The positive thoughts will bring to us good oxygen for mind with good thoughts. If we have good thought in our mind, positive thought in the mind, it's making healthy mind, healthy body. Healthy person always stay in this life with honest smile. I will give you example about Tripitaka chanting. She is in front of me with a smile. Why you are smiling? You are operating for the society with kind thoughts. Very, very good things, spiritual things. Now you can smile. Tomorrow you can be smile. Day after tomorrow you're going to smile. Next year you're going to smile. When you meet someone, you can talk about this program with a smile. If you do other things, maybe right now can smile, maybe tomorrow can be smile. Good things always radiate us, doing to us good smile. It doesn't matter Buddhist or non-Buddhist. Buddhist people do good, you will have good result. Non-Buddhist people do good, they will have good result. Buddhist people do bad, they will have bad result. Non-Buddhist people do bad, they will have bad. Doesn't matter. Good is good. If you like to continue this life until enlightenment, please try to develop your own positive thoughts. This is a wonderful program to develop your own positive thoughts. This program, vibration, good energy, good blessing for your mind and day-to-day life. If you're interested to practice loving kindness meditation, please practice and practice by yourself, and later, very easy to you, share in your kind thoughts and action with kind thoughts with others. अभी आप लोगों को हम जो पहले जो भंते जी ने जो कहा
जीवन में बहुत से ऐसे जो लोग हैं जो कहते हैं कि मैं बहुत ही व्यस्त हूँ और मेरे पास वो समय नहीं है। तो जैसा कि पहले जो बताया गया कि केवल अगर 5 मिनट ही आप करते हैं, 5 मिनट का अभ्यास ही करें, तो 5 मिनट आज करते हैं, फिर कल करते हैं, परसों करते हैं, इस प्रकार से अगर आप समायोजन करें तो आपके जीवन में बहुत सा ये 5 मिनट का जो समायोजन है, ये करुणा का या मुदिता का या और भी अभ्यास का, वो सब जाकर के इकट्ठा हो जाता है। इसलिए ये नहीं कहिए कि हम मेरे पास में वो समय नहीं है। जो भी समय है उसको एक अभ्यास में आप बदल दीजिए। बहुत से जो ऐसे लोग हैं जो कि प्रकृति में ऐसा है कि उसमें जो खुशी है, जो प्रसन्नता है, वो प्रसन्नता एक ऐसी चीज़ है कि हम तो स्वयं ही प्रसन्न रहते ही हैं, लेकिन आसपास के जो लोग हैं वो भी प्रसन्न होना शुरू हो जाते हैं। तो प्रसन्न होने का अभ्यास, खुशी होने का अभ्यास हमेशा अपने मन में करना चाहिए। और इसके लिए जो है सबसे जो बड़ी जो चीज़ है वो है अभ्यास। अभी भंते जी ने दूसरे प्रवचन में जो कहा वो ये है कि मेरा नाम देवानंद है। मेरा नाम देवानंद है, बहुत ही उपयोगी नाम है, बहुत ही प्रिय नाम है ये। और देवा, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, देवा में भगवान होते हैं, गॉड होते हैं, है ना। और नंद मनी हैप्पीनेस, ये दोनों हैं। ये मीन्स मैंने कि उसमें जो है हैप्पीनेस के ये गॉड हैं, और हैप्पीनेस के गॉड ये इंगित करना चाहते हैं कि ये संसार में ये जो प्रसन्नता है, खुशी है, वह एक ऐसा माध्यम है जिससे कि मैं तो खुशी रहता ही हूँ, लेकिन जो हमारे आसपास के जो पड़ोस के जो लोग हैं वो भी खुश रहना शुरू कर देते हैं। इसलिए यह एक ऐसी दवा है, इस दवा को हमेशा अपने पास में रखना चाहिए, इसका अभ्यास करना चाहिए। और इसके जो आयाम हैं, वो आयाम में वो 3 हैं कि पहला तो आपको सुनना, और दूसरा जो है आपको पहला है उच्चारण करना, और दूसरा है सुनना, और तीसरा है इसका जो अभ्यास करना। ये 3 का जो माध्यम का समायोजन जब हो जाता है, तब ये जो है आपको जीवन में जो प्रसन्नता जो आती है वो अद्भुत है। मैं स्वयं ही ये लविंग काइंडनेस का मैं स्वयं ही अपने अभ्यास करता हूँ। और अभ्यास करने के लिए आवश्यक ये है, पहली आवश्यकता ये है कि शांत वातावरण हो। शांत वातावरण के लिए आवश्यक ये नहीं है कि मैं कोई मंदिर ही हो या कोई जो है मस्जिद ही हो, कोई भी हो सकता है कि आपको कोई जो है आपको बगीचा ही हो या कोई वो शांत जगह ही हो। उन शांत जगहों को वो चुनना चाहिए, और चुनने के बाद जो है आपको अभ्यास करना चाहिए। यह मैं आपको फिर से कहता हूँ, ये जीवन में ये जो खुशियाँ हैं, प्रसन्नता है, वो बहुत बड़ी दवा है संसार के लोगों को खुश रखने का। और हमारे अंदर में जितने भी जो नकारात्मक जो विचार हैं, उन नकारात्मक विचारों को बिल्कुल भगा देता है, और जो जीवन में हमारे जो जितना भी सकारात्मक विचार हैं उन सब को ला करके खड़ा कर देता है। ऐसा है ये लविंग काइंडनेस का परिणाम। भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं वो शिक्षा जो है हजारों लाखों करोड़ों लोगों को जीवन में एक नया मार्ग दिया है, सहायता किया है। और ये सहायता आज भी संसार में इनके